اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم محترم جناب انجم نثار صاحب، وائس پریزیڈنٹ ساتھ CCA، محترمہ ہینا منصب خان صاحبہ، چیئرپرسن ساتھ چیمبر وومن انٹرپرینورز کونسل، محترم جناب ذوالفقار علی بٹ صاحب، سیکرٹری جنرل ساتھ CCA، جناب آنرری سید صاحب، وائس پریزیڈنٹ FPCCA، اور ٹو بی پریزیڈنٹ فہیم سہگل صاحب، لاہور چیمبر، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میری ویسے درخواست ہوگی ہمارے جو ٹو بی پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیں، دونوں کٹھے بیٹھ جائیں۔ تو آج کی اس میٹنگ کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ فرحان سعید بٹی صاحب سے درخواست کروں گا تلاوت قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ جی، آج گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت لمحہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ ساتھ کے جو عہدیداران ہیں، ساتھ کے حوالے سے ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارے کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہوں گے اکنامک کارپوریشن کے بارے میں۔ مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم بنگلہ دیش میں فیئر ٹریڈ ایشیا ساؤتھ کے حوالے سے جو ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ گجرانوالہ جو کہ SMEs کا ہب ہے، ہمارے پاس پاکستان میں دوسرے نمبر پہ SMEs ہیں، 18,000 SMEs اور کاٹیج انڈسٹری انڈسٹریلائزیشن کے حساب سے پاکستان میں چوتھے نمبر پہ۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ایگزیبیشن کے اندر ہم اپنا میکسیمم انپٹ دے سکیں۔ گجرانوالہ کے جو ٹاپ برانڈس ہیں، گجرانوالہ کے SMEs جو بنا رہی ہیں، ان کو اپنی چیزیں انٹرنیشنل اور سارک کنٹریز میں متعارف کرانے کا موقع بھی ملے گا۔ سارک کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ آلموسٹ 5.25 بلین کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہماری جو ہے وہ پہلی ہے، اور بڑا کوشن ہے اس میں۔ ہم محنت کریں تو ان کے نمبرز کو جو ہے ہم اوپر بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ابھی ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے، ہم چیمبر کے پلیٹ فارم سے اپنے ممبرز کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کریں گے۔ ابھی میں درخواست کروں گا کہ گجرانوالہ کی ڈاکومنٹری جو ہے اس کو چلایا جائے۔ جب جستجو اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان۔ منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین، پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی مناظر سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 Yes.
जस्तजू और हौसले हो जवान तो मिल जाते हैं मंजिलों के निशान। मुनफरिद सकाफत और मोहब्बतों की अमीन सरजमीन, पाकिस्तान के तेजी से तरक्की और खुशहाली की मनाजिल समेटता शहर गुजरांवाला, जो महज चंद ही सालों में हर मैदान में अपनी मसनूआत के मयार को बरकरार रखते हुए 150 से ज्यादा मसनूआत दुनिया के 80 से ज्यादा ममालिक को सालाना 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा की बरामद कर रहा है। गुजरांवाला की मसनूआत दरामदात की कमी का बेहतरीन नेमुल बदल भी साबित हो रही है, जिसकी वजह से सालाना 3 अरब डॉलर की बचत मुमकिन बनाई जा रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक गुजरांवाला कराची, लाहौर और फैसलाबाद के बाद तेजी से सनती तरक्की में आगे बढ़ रहा है। गुजरांवाला में सनती तरक्की के सफर की बर्फ रफ्तारी का अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ रीजनल टैक्स ऑफिस गुजरांवाला की सतह पर ये शहर इस साल 40 अरब रुपए से जायद मुल्की खजाने में जमा करवा चुका है। गुजरांवाला में 8,000 से जायद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जबकि 13,000 से जायद घरेलू सनतें मुल्क में तरक्की और खुशहाली का सुनहरा दौर लाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बिलखुसूस गुजरांवाला और बिलअमूम पाकिस्तान भर में मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए अमावक मसरूफ अमल है। मुकामी तौर पर तैयार करदा मयार और जिद्दत में बेमिसाल मुख्तलिफ मसनूआत को बैनुल अक़वामी तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए गुजरांवाला चैम्बर मेड इन गुजरांवाला के उन्वान से सनती नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सनती नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसनूआत की मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर वज़ीराए करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरांवाला को कारोबारी और सनती दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरांवाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के मरहूम मिन्नत आज गुजरांवाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से SMEs के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सनती पैदावार के मयार और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरांवाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला सूबे भर के बड़े सनती यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरांवाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसी मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर साया मुख्तलिफ मेंबर सनतें सैनिटरी वेयर्स, सेरामिक टाइल्स, रिफैक्टरी ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tablewares, cutlery, cookwares, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, tray mats and rugs, rice, cheese and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, स्टील फर्नेस और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मसनूआत की बरामद यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरांवाला की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करदा मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और
बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चेंबर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेटा, SCCT, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गैपको शामिल हैं। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर, गुजरांवाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मजीद उजागर करने के लिए जदीद बनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिजाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को भी यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरांवाला की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फरोग के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनजर रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ गुजरांवाला चेंबर ऑफ कॉमर्स के रिफाही कारहाय नुमाया का जिक्र करना भी जरूरी है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी मदद आम के तहत सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं और तकरीबन 40% शहरियों को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में गुजरांवाला में ट्रस्ट अस्पताल, जिनमें अमराज़ क़ल्ब के लिए जदीद सादिक ट्रस्ट अस्पताल, हाजी मुराद आई ट्रस्ट अस्पताल, इब्राहिम आई ट्रस्ट अस्पताल, जिना ट्रस्ट अस्पताल, रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल, अल्लामा इकबाल ट्रस्ट अस्पताल, अर्राइब ट्रस्ट अस्पताल और दीगर फलाही अस्पताल दिन रात खिदमत खल्क के लिए कोशां है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन और अस्पताल को जदीद एम्बुलेंसेज की फराहमी, मुस्तहिक अफराद को हेपेटाइटिस के मुफ्त इंजेक्शन की फराहमी, डबल 2 को जापानी फायर ब्रिगेड गाड़ियों की फराहमी, महकमा पुलिस के नौजवानों के लिए मोटरसाइकिलों की फराहमी के अलावा जब भी मुल्क में कुदरती आफात आए, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने कुदरती आफात से मुतासिरीन की बहाली के लिए दिल खोल कर मदद की। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के ताउन से तालीम के मैदान में कायम शुदा हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए माली तौर पर कमजोर और ज़हीन तलबा को वज़ाइफ और समाजी बहबूद के हवाले से जिले सेंट्रल जेल की इंतजामिया के साथ मिलकर प्रिजनर्स वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम से जेल में मुक़य्यद कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए माली ताउन फराहम करना जैसी सरगर्मियाँ और इक़दामात भी गुजरांवाला चैम्बर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काबिल ज़िक्र है और वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मद्देनज़र बहुत से समाजी बहबूद के प्रोजेक्ट्स मंजूर करवाए। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहरों का सफर करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इदारे हुकूमत के वक्त से मंजूर करवाए। गुजरांवाला के सनती पोटेंशियल और गुजरांवाला में अवाम और सनतों को गैर मैसर सहूलियात और सनत और बरामदात के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुल्की और मुकामी सतह पर बड़े प्रोजेक्ट को अपनी मदद आम और हुकूमती ताउन से अमली जामा पहनाने का अज़्म रखे हुए है, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, ड्राई पोर्ट, मोटरवे लिंक, कार्गो ट्रेन, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला शामिल है। ऐसे तमाम इक़दामात सनत और तिजारत को तहकीक से मुंसलिक करने की जानिब अहम संगीन साबित हो रहे हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने अहदाफ के हुसूल के लिए हर वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। जी थैंक यू वेरी मच। हम एक बार फिर अपने मज़हब मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री जो है आपने देखी, ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है। इसके बाद भी काफ़ी अचीवमेंट्स इस रजीम ने जब से हमने 8 माह हो गए तकरीबन 4 संभाला है,
تو بہت سی اچیومنٹس جو ہیں الحمدللہ ہم نے کی ہے. پاکستان کے چیمبرز کی سب سے بڑی ایکسپو ہم نے اسلام آباد میں کی. میرا خیال میں آپ کا اتفاق وہاں پہ نہیں ہوا, ملک میں نہیں تھے, جس میں تقریباً کوئی 70 سے 80 امبیسڈرز, ٹریڈ اتاشیز, کمرشل اتاشیز, نیشنل لیول کے ڈیلیگیشن وہاں پہ تشریف لائے. 7-8 ماہ میں بھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. سارے کا سارا فیسیلیٹیشن فلور ہم نے بنایا ہے, جس میں نادرا, گیپکو, ڈرائیونگ لائسنس, خدمت مرکز. ابھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آسیان کا کاؤنٹر یہاں پہ فیسیلیٹیشن کاؤنٹر بنایا ہے. سینٹرل ایشین ریپبلک اسٹیٹس کا فیسیلیٹیشن کاؤنٹر ہم نے یہاں پہ بنایا ہے. موفا کے لیے کام ہو رہا ہے, پاسپورٹ کے لیے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ڈی جی پاسپورٹ بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اس کے لیے. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم جتنی بزنس کمیونٹی کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, آسانیاں بانٹ سکیں. انشاءاللہ ہم اپنے طور پہ, میں, میری ٹیم, ہمارے گروپ کے جو لیڈران ہیں, سارے کے سارے ایگزیکٹو ممبر ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ لے کے ہم بزنس کمیونٹی سے آئے ہیں, جو وعدے ان سے ہم نے اپنے اسپیچز میں کیے, ان کو پورا بھی کیا جائے. اس کے لیے ہم دن رات ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ابھی میں گزارش کروں گا ٹو بی پریزیڈنٹ فہیم سہگل صاحب سے اپنا تعارف کرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل وائس پریزیڈنٹ صاحب, ہمارے لیڈر جناب میاں جمیل نثار صاحب, رانا صدیق صاحب پریزیڈنٹ گجرانوالہ چیمبر, چودھری یوسف صاحب وائس پریزیڈنٹ, ہمارے لیڈر شیخ محمد اسلم صاحب, محمد علی صاحب, رانا ناصر صاحب فارمر چیئرمین بزنس گروپ, عامر صاحب گروپ لیڈر, عاصم انیس مائی بردر, علی ہمایوں بٹ صاحب, چودھری غلام حسین جج صاحب, میاں عمر سلیم صاحب, وقاص افضل صاحب فارمر وائس پریزیڈنٹ, آفاق ایوب صاحب, نعمان الحق صاحب ہمارے لاہور سے آئے ہوئے پیاف کے ایسی ممبر, لاہور چیمبر کے ایسی ممبر, اینڈ آل ریسپیکٹڈ بورڈ ممبرز آف گجرانوالہ چیمبر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی, اور اٹس اے میٹر آف گریٹ پرائڈ فار اس ٹو بی ہیئر. اور جو اچیومنٹ میں سامنے آپ نے مجھے گنوائی ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ 40 بلین کا ٹیکس دیا ہے, 1.5 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, اور تقریباً 3 بلین US ڈالر کی آپ لوکلائزیشن ہے, راؤنڈ اباؤٹ 5 بلین US ڈالر کی کنٹریبیوشن ہے آپ کی پاکستان اکانومی. اور اس کے علاوہ جس خدمات کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہیلپ ایجوکیشن, ہیلتھ سیکٹر میں, پریزنر سیکٹر میں, جو بھی ایک سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہماری بزنس کمیونٹی کر سکتی ہے, اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بزنس کمیونٹی ٹیکس کے علاوہ جو اپنا انپٹ دیتے ہیں, کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے, لیکن یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں, اور اس ملک کو جو ہم نے پے بیک کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ہم یہ جو بھی ہم یہ تھوڑا وہ ڈلیور کر رہے ہیں لاہور چیمبر کی حد میں. اور میں آج کل آپ کو پتہ ہے, شاید کچھ دوست واقف نہ ہوں, اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہوں KPT کا. تو جب سے ہم نے وہاں پہ بھی یہ اپنے کام کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور یہ میرے علی, میرے بھائی, یہ میرے ساتھ پورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میں میرے ممبر بھی ہیں, اور یہ ہم نے صرف بزنس کمیونٹی کی جو ہے نا ان کی خدمات کے لیے KPT جو کچھ کر سکتی ہے اس کے لیے ہم نے یہ پورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ آل آف یو, آپ کو سر کسی حوالے سے پورٹ کی کوئی پرابلم ہو, یا آپ نے کوئی اس کی ہماری اس سلسلے میں کوئی اتنا اچھا ہمارا انپٹ چاہیے ہو, تو ہم حاضر ہیں. تو ہمیں ریسنٹلی آج کی جو ایک اناؤنسمنٹ ہے اسی حوالے سے, KPT کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, میں آپ کے سامنے آج اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم نے KPT ٹرائبل کمیونٹیز میں جو ہمارے پورٹ چارجز تھے اس کو 50% ریڈیوس کر دی ہے. وارفیئر چارجز جو ہیں 50% ریڈیوس کیے ہیں. یہ آج کی خبر ہے,
اور جو ڈیفرمنٹ آف 5% ایئرلی انکریمنٹ تھی اس کو بھی ہم نے ڈیفر کر دی ہے. تو یہ ساری سہولیات، یہ سب کچھ یہ ایک بزنس کمیونٹی کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں یہ ساری ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملک کی ایکسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ ہو اور ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم سے کم ہو. تو انشاءاللہ اور بھی اس حوالے سے ہماری جو بھی خدمات ہیں ہم کرتے رہیں گے. اور وش یو بیسٹ آف لک. انہی الفاظ کے ساتھ میں سب دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ لاہور چیمبر کے حوالے سے، کیونکہ ہماری ایک R&D جو لاہور چیمبر میں بڑی ایک اسٹرانگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک جوائنٹ کولیبریشن. پریزیڈنٹ صاحب آئی ووڈ لائک ٹو سائن این MOU ود یو. جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم لاہور چیمبر، گجرانوالہ چیمبر کے ساتھ ایک کمبائنڈ ایفرٹ کریں اپنی ملک کی اکانومی میں کچھ اپنا بیسٹ ان پٹ دینے کے لیے. اور میری خواہش ہوگی کہ ان دونوں شہروں کے درمیان ایک SME زون ضرور بنے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو ترقی کی جو بیسک راز ہے وہ SME کی ترقی میں ہی ہے. تو انشاءاللہ مل جل کے اس کو ایک اس حوالے سے بھرپور ایفرٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو فہیم صاحب. ابھی میں گزارش کروں گا رانا ناصر محمود صاحب چیئرمین بزنس گروپ سے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی مشکور ہوں جن نثار صاحب کا، چیدل صاحب کا، میڈم کا، اور لاہور چیمبر سے ہمارے آئے ہوئے سارے دوست، اور میرے گجرانوالہ چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر، فارمر پریزیڈنٹس جو جہاں سارے تشریف رکھتے ہیں. تو علم صاحب آج سات چیمبر کے ریفرنس سے اور فیڈریشن کے ریفرنس سے ہمارے یہاں تشریف لائے. ایک تو ہمارے یہ گروپ لیڈر بھی ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھی گائیڈ لائن ان سے ملتی ہے. اور دوسرا جو بنگلہ دیش میں ایگزیبیشن ہو رہی ہے ساؤتھ ایشیا، جس میں ہم لوگ پاکستان بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا کلیش ہو گیا کہ ایک میڈ ان پاکستان وہاں پہ کوئی اپنا دوسرے دوست ہماری کمپنی لگا رہی ہے سپٹمبر اینڈ میں، اور سیم ڈیٹس میں ہی اپنا سال کی انہیں دنوں میں ایگزیبیشن وہاں پہ اپنا اسی سسٹم میں جا رہے ہیں. تو اگر ان سے تھوڑا سا کوآرڈینیٹ ہو جائے تو میرا خیال تھا کہ ہمیں وہاں پہ کچھ اسٹاف جو باقی کمپنیوں کو سمجھنے سمجھانے میں تھوڑا سا ایزی فیل ہوتا ہے. شاید آپ کے علم میں ہو کہ راز صاحب جو ہیں وہ وہاں پر ساری کر رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ میڈ ان پاکستان کے نام سے نا. تو اب تو میرا خیال شاید وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ کو جوائن کر لیں ان سے یا باقی سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سیم 2-3 دن کا فرق ہے سر، 2-3 دن کا فرق ہے. جی ٹھیک ہے. اس طرح کیونکہ اپنا ڈیٹس کا آپس میں جو کوآرڈینیشن ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیبیٹرس ہیں اور جو آپ کے ساتھ وہاں پہ اس پاکستان کو اپنے ایز اے انویسٹر جانا چاہ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ بڑا ایزی ہو جائے گا کہ ہم لوگ اس کو ذرا نا جوائننگ میں ہمارے لیے ساری جو کمپنیز ہیں اس کو ذرا بہتر طریقے سے کر دیں گے. باقی میرا خیال ہے کہ گجرانوالہ ہمیشہ سے کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں میکسیمم، جیسے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ڈاکومنٹری میں بھی باقی چیزیں بدل کے ہم لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ٹیکس کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ سارک سے اس وقت تشریف لائے ہیں، آپ لاہور چیمبر سے، بڑے چیمبر سے ہیں، دوست تشریف لائے ہیں، فیڈریشن سے ہیں. تو کچھ ہماری کچھ گجرانوالہ کی کچھ اس طرح کے جو ہمارے جو ہم سمجھتے تو اپنے آپ کو ماشاءاللہ ایک اچھا ایکسپورٹر ہے اور باقی پاکستان کی اکانومی میں ایک اچھا جو پرسنٹیج ہے اس کا ایک اپنا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن اسلام آباد تک پہنچتے پہنچتے نا وہ ان کے ذہنوں میں نا شاید شہروں کا یا کچھ چیزوں کا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ آپ دوستوں کو تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا پڑے گا کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کو ہمیں کم از کم ان 4-5 بڑے چیمبرز میں رکھا جائے جن کو وہ سمجھتے ہیں، جیسے کراچی چیمبر ہے، لاہور چیمبر ہے،
यहाँ फैसलाबाद सियालकोट है, तो मैं समझता हूँ कि ये अगर वो गुजरांवाला चैम्बर को भी इन 5 चैम्बरों में अपना ये इसका हिस्सा दें और इनको इनका दर्जा दें, तो मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बातें जो हमारी नहीं मानी जाती वो मानी जाएंगी। अभी आजकल भी जो ये फोरम तो वो नहीं है, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ों पे मुख्तलिफ वक्तों में मीटिंग्स हो रही हैं, टैक्स रिफॉर्म्स की और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं बिल्कुल अपने एज ए ग्रुप का हेड होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस्लामाबाद तक हमारी गुजरांवाले की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें EDF भी मौजूद है, जिसमें बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं, 37AA भी है, और हमारी डिजिटल इन्वाइसेस भी हैं, इन्वाइसेस भी शामिल इसमें आ रही हैं, तो उन पर गौर किया जाए। और बाकी इंशाल्लाह ताला जो सार की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से गुजरांवाला चैम्बर को अपना एक आपकी तरफ से इंशाल्लाह ताला हम ऑर्डर ही समझते हैं, जब लीडर की तरफ से तो पैगाम आता है तो ऑर्डर आता है, और चैम्बर के जो अपना फेडरेशन के हमारे सीनियर तरीन मैं समझता हूँ आपके साथ शेख मोहम्मद असलम साहब हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, अली साहब हैं, उन्होंने अपना इलेक्शन वो कंटेस्ट किया था, इत्तेफाक से हम लोग उसमें नहीं विन कर सके, लेकिन कोई नहीं, चलता रहता है। तो मैं इन सारे दोस्तों साहब की तरफ से, अपने सारे ग्रुप की तरफ से जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो अभी मतलब नहीं पहुँचे या पहुँच जाएंगे, आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला जो हमारे गुजरांवाला चैम्बर के और हमारे ग्रुप के रूप में जो चीज़ें लगेंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। आप बात करेंगे गुलाम हुसैन जैसा बात। मैं सबसे पहले जनाब सिंह सरगुल साहब, इनाम मंसर साहब, हमारे लीडरों के लीडर जनाब मियाँ अंजुम साहब को गुजरांवाला चैम्बर में वेलकम करता हूँ। जैसे कि मियाँ साहब आपके में 2-4 दफ़ा प्रोग्राम बना गुजरांवाला आने का, कभी गुजरांवाला चैम्बर बिजी होता था, कभी आप बिजी होते थे। चलें एट दैट क्योंकि आप तशरीफ लाए। मियाँ साहब मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि जब आप फेडरेशन में प्रेसिडेंट थे, उस वक्त इत्तेफाक से PTI की गवर्नमेंट थी, तो सर इधर हमारे यहाँ एक ये प्रॉब्लम है, कोई बंदा हुकूमत की पॉलिसी के मतलब को बात करकर ये समझ लिया जाता है कि शायद ये दूसरी पार्टी से इसका तल्लुक है, लेकिन आपने कभी भी हमें गुजरांवाला को इग्नोर नहीं किया। हमने हमेशा हमें साथ रखा, कई अहम मीटिंगों में भी हम आपके साथ गए। आप उस वक्त भी कोई 20-22% था जो मार्कअप, और बहुत सी पॉलिसियाँ थी। आप प्राइम मिनिस्टर को उनके मुंह पे कहते थे आपने ये करना है तो मुल्क सही डगर पे चलना है, आगे निकलना है। तो एक दफ़ा मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा मियाँ साहब आप तो हमारी हुकूमत के पीछे ही पड़े हुए हैं, लेकिन एक मीटिंग में फिर आपको अप्रिशिएट भी किया कि आपकी वजह से मैं IMF से लड़ा और सिंगल डिजिट पे मैं मार्कअप लेके आया। फैसलाबाद वो शहर जो कभी मजदूर वहाँ पे ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, इतने एक्सपोर्ट के आर्डर मिले। लेकिन ये सब एक सवाल है कि आज आपकी बिजनेस कम्युनिटी, आप BNP के भी लीडर हैं, UBG के साथ भी आपकी अब इकट्ठे मिलने चलने का एक अच्छा बेशून है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। लेकिन हालिया दिनों में हमें बिजनेस कम्युनिटी तकसीम नज़र आई कि कराची चैम्बर ने और लाहौर चैम्बर ने तो हड़ताल की, लेकिन बाकी चैम्बर ने नहीं किया। लेकिन ये बाद में कुछ लीडरों के UBG के बयानिए भी सुने कि ये ना कोई समझे कि हम शायद तकसीम हो गए हैं, हम इकट्ठे हैं। तो मेरा ख्याल जो जिनकी भी अदारों की या हुकूमत की कोशिश है कि बिजनेस कम्युनिटी को तकसीम करके शायद वो अपने मकासद में कामयाब हो जाए, लेकिन आप लोग बैठे हैं सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए थे, तो वकार सफदर साहब बैठे हैं, इन्होंने एक सवाल किया, वो लाजवाब हो गए कि 37A और 37B ये उन लोगों के लिए बनी है जो ऑलरेडी नेटवर्क में हैं, और जो नहीं हैं या जो मुल्क को लूट रहे हैं उनके लिए आपने क्या कानून बनाया। लेकिन उनके पास इसका जवाब नहीं था। तो सर मेरी
یہ گزارش ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ ایک آپ آواز ہیں چیمبروں کی ہیں، مدر چیمبر ہیں آپ لوگ، تو بزنس کمیونٹی کے جو بھی مفاد میں ہے وہ کام کی جائے، بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کی جائے. بہت شکریہ. جی شیخ محمد علی صاحب سے بات کریں. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. سب سے پہلے تو جی پریزیڈنٹ صاحب سے ہمارے گروپ چیئرمین صاحب کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میاں صاحب، فہیم صاحب، میڈم حنا، چیئر پرسن فار دا ساک وومن، اور ہمارے لاہور سے آئے ہوئے دوست شبان صاحب اور جیسے ایگزیکٹو ممبران. آپ نے ابھی ڈاکومنٹری میں تو گوجرانوالہ چیمبر کا دیکھا ہے. تھوڑا سا یہ تھا کہ گوجرانوالہ کسی بھی آپ اگر اوور آل بھی دیکھیں تو دنیا میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے تو دا ایس ایم ای آلویز پلے پیوٹل رول اس کے اندر. تو گوجرانوالہ ایک ہمارا واحد شہر ہے اس ملک کا جس کے اندر سب سے زیادہ کلسٹر بھی موجود ہے اور ایس ایم ایز جو ہیں وہ بھی الحمدللہ سب سے زیادہ ہے. اور اب آہستہ آہستہ گریجولی دا ایس ایم ایز از کنورٹنگ ان ٹو دا لارج اسکیل یونٹس. اور جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ ایکسپورٹ میں بھی ہم ماشاء اللہ ایک اچھا دوسرے شہروں کے مقابلے میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ساک کے ریفرنس سے ساک کا تھوڑی دیر میں بھی ساک میں دیکھا پچھلے 2014-2015 میں. اب ساک کی جب سے انڈیا نے ہمارے ساتھ مطلب کولیبریشن آپ کے ساتھ ساک نہیں کرتے. ٹو بی آنیسٹ وتھ میرے خیال میں تو ساک از آلموسٹ اے ڈیڈ ہارس. تو آپ مطلب آبویسلی آپ نے 1-2 سال میں اپنی بڑی ایفرٹس کی ہے. ابھی بھی ساک کے پریزیڈنٹ بھی آپ نے لاسٹ ایئر ان کو بلایا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بڑی ضرورت ہے کہ جو آل اکراس دا پاکستان جتنے چیمبرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے تو دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ آپ پلس ساک کے ایکٹیویٹ کریں تبھی یہ فورم جو ہیں وہ ہمیں آگے بینیفٹ کریں گے. انٹرنیشنلی آبویسلی اوبلیگیشنز ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ اگر نہیں آتا تو اس طریقے سے ساک جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتا. لیکن جو باقی جتنے ہیں اور ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے کس طرح ہم کر سکتے ہیں. اور ایک آپ بلڈنگ بھی موسٹ پرابلی ساک کی ہیڈ آفس بنا رہے ہیں. اس سے بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جب ساک کا آفس بن جائے گا تو اس سے بھی جو ہے وہ کولیبریشن جو ہے وہ آ جائے گی. انہیں آخری الفاظ سے ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. جی بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا شیخ عامر احمد صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب، انجم نثار صاحب، فہیم صاحب اور میڈم حنا صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس سے. آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. میں غلام حسین جائی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بڑی شارٹ بات کروں گا کہ ہمیں موقع ملا اسلام آباد لاسٹ ویک میں پریزیڈنٹ صاحب کو جانا تھا، ہم بھی ساتھ چلے گئے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فیڈریشن آف پاکستان، چونکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اب آپ دونوں ہمارے جو گروپ ہیں، جو ہمارا گروپ ہے بی این پی اور جو دوسرا گروپ ہے وہ آپس میں میرا خیال ہے کولیبریشن میں ہے اور آپس میں آپ کا اتفاق ہو گیا ہے آگے. تو وہاں پہ جب وہاں پہ دیکھا ہم نے کہ جو لائن تھی فیڈریشن آف پاکستان کی وہ ڈفرینٹ تھی اور جو لاہور چیمبر اور کراچی چیمبر کی انٹائرلی ڈفرینٹ تھی. وہاں پہ بڑی بدمزگی بھی ہوئی اس چیز کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ اب آپ ہمارے لیڈر ہیں اور آپ دونوں گروپ جو ہیں وہ کولیبریشن میں ہیں تو آپ لوگوں کو ایسی فورم میں جہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے جا کے جائیداد کرنے ہیں اور اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ آپ لینے گئے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ آپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. وہاں پہ جب پریس کانفرنس کا ٹائم آیا تو جو ہمارے پریزیڈنٹ وہاں پہ لاہور کے ان کا سٹانس میڈیا پہ کہ بڑا ڈفرینٹ تھا. اس کے بعد جو فیڈریشن کے ہمارے پریزیڈنٹ تھے ان کا بڑا ڈفرینٹ تھا. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک تماشا سا تھا. تو میرا خیال ہے آئندہ سے اس چیز کے اوپر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی ڈیلیگیشن یا کوئی بھی گورنمنٹ کے اوپر جب آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جائیں تو ایٹ لیسٹ سب سے پہلے آپ کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. چیمبر آف کامرس کو جو پریزیڈنٹ ہے ان کو ایک میٹنگ کال کرنی چاہیے اور آپ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اور ایک اسٹانس کے اوپر آنا چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ جا کے کچھ حاصل کر سکیں.
गवर्नमेंट तो डेफिनेटली उनका तो ये चाहत है कि वो डिवाइड एंड रूल के साथ काम करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने किसी भी तरीके से मैनेज कर लिया। तो जो हमारी हड़ताल थी 19 की, वो हमारी सो कॉल ख़राब हो गई ना, कुछ शहरों में हुई, कुछ में नहीं, उसका भी इंप्रेशन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और लोग जो बिजनेस कम्युनिटी जिन्होंने हड़ताल की उनको नुकसान भी होगा एक दिन का। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। बाकी आप गुजरांवाला आए हैं, आपका शुक्रिया। आप बताएं, आप आपका सुनते हैं क्या लेके आए हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया शेख आमर रहमान साहब, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है, सारी बातों ने की है। लेकिन वहाँ पे आपकी जब जो मीटिंग डेकोरम होता है तो मैं तो खुद हैरान रह गया कि मतलब बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने जाते हैं और आप जो है वो ड्यूरिंग मीटिंग जो है वो ऐसे अल्फाज शेयर वहाँ पे हुए कि वो बंदा कहता है कि मैं ये क्या हो रहा है यहाँ। तो इसके लिए हमें जो है ना वो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे भी होना ज़रूरी है। जैसे अमर भाई ने बताया, पहले प्रेसिडेंट चैम्बर्स मीटिंग कर लें, एक एजेंडा लेके जाएं। जब खुद एक एजेंडे पे नहीं होगे तो हमने किसी से क्या मनवाना है। तो बार मेरा ख्याल है कि अंजुम निसार साहब आप माशाल्लाह हेड कर रहे हैं सारे मामलात को। आपको इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह नहीं होना चाहिए। अभी मैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट यासम अनीस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे ग्रुप लीडर और पाकिस्तान के एक बड़ा नाम अंजुम निसार साहब, मैडम हिना मंसर साहबा, मेरे बड़े प्यारे भाई कमिंग प्रेसिडेंट फहीमुर रहमान सैगल साहब और सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑन अली सैयद साहब, वेलकम जी आपको। जी नवीद बलोच साहब, नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। अली नीचे लाओ एक खाली। जी मैं ऑन अली सीए साहब को वेलकम करते हैं जी। मेरी गुजारिश सिर्फ यही है, मैंने यही अर्ज करनी थी कि हमारे पास जो बीएनपी की शक्ल है जी वो शेख मोहम्मद असलम साहब हैं और मेरा ख्याल है हमारी पहचान भी और हमारा जो सारा सिस्टम है चैम्बर पॉलिटिक्स का वो उन्हीं के गिर्द घूमता है। और हमारा जो आपका वास्ता है वो जो ब्रिज है ना मेन अंजुम साहब, वो शेख असलम साहब हैं और उनका जो बरखुरदार मोहम्मद अली, यकीन करेंगे एक गिफ्ट है हमारे लिए और हम आपको वंस अगेन दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं और भी सुनेंगे आपको कि आप इंशाल्लाह हमारे लिए इस कम्युनिटी के लिए जो साख के हवाले से क्या लेके आए। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मैं एक बार फिर औन अली सैयद साहब को वेलकम करता हूँ, जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब, नवीद बलोच साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट ग्वादर चैम्बर, सब दोस्तों को हम वेलकम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी किसी भी दोस्त ने बात तो नहीं करनी, बस तकरीबन हो गई है। तो अभी मेरी गुजारिश होगी कि साख के हवाले से जो है वो असर आप आएगा औन अली सैयद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रेसिडेंट साहब राना सिद्दीक साहब, मेरे बुजुर्ग यहाँ के बल्कि हमारे वालिद साहब की जगह रखते हैं शेख असलम साहब, हमारे चेयरमैन मियां अंजुम निसार साहब, हमारी बहन नमस्ते साहिबा, अली भाई और जितनी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, गुजरांवाला जब भी आए जी अपना घर समझ के आए हैं और बिल्कुल हमेशा आपने इतनी ड्यू रिस्पेक्ट दी है कि यहाँ आके मुझे
कल आना नहीं था, क्योंकि कल भी मैं गुजरात से इस्लामाबाद गया हूँ और फिर वापसी पे अंकल ने हुक्म किया है, तो फिर अंकल का हुक्म नहीं टाला जा सकता। तो इस वजह से सुबह फिर उठ के, क्योंकि रात को मेरी कॉन्टीन्यूसली पिछले 2 वीक से ट्रैवलिंग चल रही थी। सॉरी, एक हमें इस्लामाबाद से आते हुए इतनी बारिश भी मिली कि हम लेट भी काफ़ी हो गए। पर मैं एक तो गुजरांवाला तो सबसे, मैं उस एक्सपो में नहीं आ सका, पर इंटरनेशनली बैठ के आपका माशाल्लाह उससे मुबारकबाद भी पेश करूंगा। आपने जो एक एक्सपो करवाया था वो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में वो और उसी वजह से हम सारी फॉर्म से यहाँ पे आए हैं कि अगर हम रीजनल ट्रेड की बात करें तो हमारा रीजनल ट्रेड बहुत कम है एज कम्पेयर टू आप आसियान रीजन को देखें, यूरोपियन यूनियन को देखें। तो हम भी चाह रहे हैं कि, और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है कि रीजनल ट्रेड को, सार्क को, सेंट्रल एशिया को ट्रेड को बढ़ाए। उसमें जैसे अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट आई है और वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, और हमारी गुजरांवाला की, सियालकोट की, गुजरात की इंडस्ट्री को काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लास्ट टाइम मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं, जैसे आपकी वजीराबाद की कटलरी को ही देख लें, वो शायद इटालियन लेवल की कटलरी से ज़्यादा अच्छी है, पर काफ़ी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो मीडियम साइज के, उसे आइडिया नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे करनी है। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कोई फैसिलिटेशन सेंटर इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, क्योंकि गुजरांवाला से तो ऑलरेडी पाकिस्तान का आई थिंक तो दूसरा बड़ा शहर है जो एक्सपोर्ट काफ़ी हो रही है, और इसे इंशाल्लाह मजीद रीजनल ट्रेड की तरफ साथ में भी, साउथ एशिया में, ECO कंट्रीज में भी इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह जो रोल हमारी तरफ से प्ले हो सका हम करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां जुमले साहब। इन्होंने हमेशा हमें एक पॉजिटिव तरह से गाइड किया है, हमेशा हमें लीडरशिप से कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं महसूस हुई। हमेशा मियां साहब हमें सपोर्ट करते हैं और हर एक को साथ लेके चलते हैं। इंशाल्लाह जैसे आप लोग कहेंगे, हमारी इज्जत आपसे, आपकी इज्जत हमारे से, हम आपके साथ चलेंगे और आपको भी साथ लेके चलेंगे। और कोई भी हमारे लाइक फेडरेशन लेवल पे भी मेरे लाइक जो भी आपका हुक्म हुआ, मैं हर टाइम हाजिर हूँ। आप राना साहब, आप भी, अली भाई, जिस टाइम पे कोई हुक्म करें, एवरी टाइम आई एम विद यू। थैंक यू वेरी मच। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब से कि वो क्या नाम है, मेरे ख्याल में मैं एडवोकेट कर लेता जी मोहतरमा चेयरमैन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राना सदीक साहब, शेख हसन साहब, अली और आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा आज, और मैं 3rd टाइम आई हूँ गुजरांवाला। जैसे आप लोगों ने कहा कि एग्ज़िबिशन की अभी हम तारीफ़ कर रहे थे कि मैं नहीं आ सका, लेकिन मैं उस एग्ज़िबिशन में गई थी, और जितनी अच्छी आप लोगों ने इस्लामाबाद में 3 दिन की एग्ज़िबिशन की, और वुमेन के हवाले से जो यहाँ के ड्रेसेस हैं, हमारी काफ़ी सारे डिज़ाइनर से भी बात हुई। तो हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश की हमारी एग्ज़िबिशन है, इसमें आप लोग आएँ, हमारे साथ चलें। तो गवर्नमेंट भी चाहती है, और इंडिया की बात, जो बांग्लादेश है उसका ट्रेंड टोटल डिफरेंट हो रहा है, और हम चाहते हैं कि जितनी ट्रेड हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट की है इसमें। तो गुजरांवाला आके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बाकी डिटेल्स ये हैं कि जुल्फ़िकार भट्ट साहब आपको देंगे, और मैं चाहूँगी कि आप लोग वुमेन के हवाले से जो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो लोग अगर शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे फैशन शो भी कर रहे हैं, जो लोग गारमेंट से रिलेटेड हैं वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। गुजरांवाला में फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो काफ़ी जो फेमस ब्रांड्स हैं वो गुजरांवाला के हैं। हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आज आए नहीं। MNR का ब्रांड, वन ऑफ द फेमस ब्रांड इन पाकिस्तान, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बांग्लादेश में भी वो लाजमी लेके जाएँ। अभी मैं हाँ जी
جی جی میں ابھی درخواست کروں گا انجم نثار خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب پریزیڈنٹ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رانا صدیق صاحب, وائس پریزیڈنٹ چودھری یوسف صاحب, فارمر پریزیڈنٹ گجرانوالہ چیمبر ہمارے لیڈر شیخ اسد صاحب, فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد علی صاحب, عاصم انیل صاحب, رانا نثار صاحب, فارمر پریزیڈنٹس, چیئرمین بزنس گروپ جناب رانا ناصر صاحب کی بات ہوگی, اور جناب علی ہمایوں بٹ صاحب انکمنگ پریزیڈنٹ, جناب ججوں کے جج غلام حسین جج صاحب, میرے بھائی میاں سلیم عمر صاحب آلسو فارمر پریزیڈنٹ آف گجرانوالہ چیمبر, کاس صاحب ویری ڈائنامک پرسنالٹی ماشاء اللہ, اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کو, اینڈ آفاق ایوب صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ, نعمان الحق صاحب, اینڈ اور کولیگس اور دوست بھائی یہاں جو تشریف رکھتے ہیں, سب کو جی السلام علیکم. میرے ساتھ ڈیلیگیشن میں اور علی سید صاحب وائس پریزیڈنٹ پی سی سی آئی, اور فہم الرحمان سہگل صاحب انکمنگ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اینڈ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ایکٹنگ چیئرمین آف کے پی ٹی, اور ذوالفقار بٹ صاحب سیکرٹری جنرل صاحب, عبداللہ صاحب ہم لاہور میرے ساتھ تشریف لائے ہیں, ہمارے لیڈر جناب نوید بلوچ صاحب اس طرف بیٹھے ہیں, جناب ذیشان سہیل ملک صاحب, شبان اختر صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, میاں نواز صاحب, اور جناب عامر علی صاحب, اور میری بہن ہینا منصف خان صاحبہ, ساتھ کی وائس پریزیڈنٹ فار وومن. جی السلام علیکم. بیسیکلی تو لگ ہی نہیں رہا کہ میں یہاں مہمان ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی ہوں. سارے چہرے آپ دوستوں کے ساتھ ہر سال 2-3 ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور الیکشنوں میں بھی آپ ساتھ ہوتے ہیں, تو وی آر بیسکلی اے ٹیم. الحمدللہ اسی ٹیم کی بدولت پھر فیڈریشن کے الیکشن بھی جیتے, اور الحمدللہ اس سال آپ نے بھی اپنے الیکشن جو ہے وہ آپ کو اپنے جو الیکشن جیتنے پر بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا گروپ جو ہے ایک ٹرن ڈاؤن کر کے اور بڑی تھمپنگ وکٹری آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. صرف آپ نے 1 سیٹ لوز کی ہے, اور 28 میں سے 27 سیٹیں آپ کے گروپ نے جیتی ہیں. بس میں یہی چاہوں گا کہ آپ دوستوں میں اتفاق رہے. چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیٹس ناٹ میک اٹ بگ, اور ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رائے کو ذرا برداشت کریں, تو میرے خیال میں آئی تھنک فیوچر از یور, اور انشاءاللہ دوسرا گروپ آپ کے قریب نہیں بھٹکے گا. جہاں تک دیکھیں ساکھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں, ویسے تو جو ریجنل ٹریڈ کا جو ماڈل ہے یہ ساری دنیا میں بڑا کامیاب ماڈل گنا جا رہا ہے اور ہے. EU کا دیکھ لیں, 60-62% جو ان کی ٹریڈ ہے وہ 27 ملک جو ہیں ان کے آپس کے اندر ہی وہ ٹریڈ ہوتی ہے, تو ان کو ایک دوسرے کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. اسی دوسرا ایک آسیان ہے اندر ایگزامپل, اور یہاں بھی 10-11 ملک شامل ہیں, اور ان کے درمیان میں ٹریڈ ایک اچھا بہت بڑا والیوم جو ہے ان کا آپس میں ٹریڈ میں ہوتا ہے. اور ایک نیفٹا ایک ایگریمنٹ تھا جو نارتھ امریکہ سے ریلیٹڈ تھا, جس میں امریکہ, کینیڈا اور میکسیکو شامل تھا, لیکن جب سے وہ ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے ہر چیز کو تہز نہز کر دی ہے, ہر جگہ انہوں نے ڈیوٹی امپوز کی ہے, اور وہ منمانی صبح کچھ کہتے ہیں شام کچھ کہتے ہیں. بہرحال وہ ایک بڑا کامیاب ایک ماڈل تھا
लेकिन इस साल खासा डिस्टर्ब हुआ है और आपस में उन्होंने बैरियर्स भी रेस कर दिया, बहुत सारी जो है वो टैरिफ भी एक दूसरे मुल्कों पर लागू कर दी है, जो कि बेसिकली ये जो WTO का जो मैकेनिज़्म है जो यूरोप और अमेरिका ने यहाँ हम पर भी ज़बरदस्ती लागू हमसे करवाया, क्योंकि इससे पहले जो दुनिया का जो कारोबार था वो गैट के गिर्द घूमता था और फिर गैट के बाद फिर ये WTO आया, 1993-94 में आया और फिर वो कंटिन्यू कर रहा है। मकसद उसमें ये था कि जिस मुल्क का जो पोटेंशियल है उसको उस अपने पोटेंशियल पर काम करने दिया जाए और कोई सब्सिडी ना मिले और वो अपने फ्री कारोबार करे, और इसी वाले से रीजनल ट्रेड और ग्लोबल ट्रेड भी जो है वो इस फार्मूले के तहत जो है वो आगे बढ़ी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अब क्योंकि दुनिया में बहुत सारे जियो पॉलिटिकल हालात चेंज हो गए हैं, जिस वजह से जनाब ये अंकल सैम ने तो जईते ही फेर के रख दी है, समझ ही नहीं आती कि वो कभी 250% टैरिफ लगा रहे होते हैं और कभी फिर वो कहते हैं कि हम 150 पे ले आए हैं, और अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी उसारी है। बहरहाल वो अपने बेसिकली मुल्क के वो चाहते हैं कि मेरे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो। अच्छा, अब सार्क का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 8 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस जो है, भूटान, ये शामिल है। तो बेसिकली यहाँ ये दुनिया की 1/4 ऑफ द आबादी जो है वो इस रीजन में जो है वो रहती है। तो आप अंदाज़ा करें इसमें कितना पोटेंशियल है। अगर ये ट्रैक पे और सही अंदाज से चल रहा होता तो आपस में आप जॉइंट वेंचर्स भी करते, आप टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी करते, आप ज़राअत में, बिजली में और बहुत सारे एजुकेशन में, हेल्थ में, टूरिज़म में बहुत सारा जो है ना वो काम हो सकता था और होना चाहिए था। लेकिन वो जो पोटेंशियल इस रीजन का है वो सम रीज़न वो हासिल हम नहीं कर सके, और उसके अंदर भी फिर जियो पॉलिटिक्स भी बीच में आ गई। हालांकि ट्रेड को और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन कुछ ममालिक हैं वो खेल को भी बीच में ले आते हैं, जिसकी वजह से ये खिता जो है वो डिस्टर्ब रहा है। और इस वक्त तो जो है हालिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो जो थोड़ा बहुत जो ताल्लुक था वो भी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है। ये जो हालिया जो मई के महीने में जो 4-5 दिन की जो झड़प शड़प हुई थी और जिसमें अल्लाह ने बड़ा सुखरू किया पाकिस्तान को, तो ये अब इसमें देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे इसका फ्यूचर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज जब होगा कि यहाँ जो एक चार्टर जो है वो या एक क्या कहते हैं जी साहब उसको, 7 चार्टर जो है वो हमारे जितने भी 8 ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो जब साइन करेंगे तो फिर ये चीज़ नॉर्मलाइज होगी और रेगुलराइज होगी। बहरहाल इसमें एक वक्ती तौर पर एक खलल आया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और मामलात भी बेहतर होंगे। इस वक्त पहले बांग्लादेश के साथ हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, रिसेंटली हालात जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर हो गए हैं आफ्टर द चेंज ऑफ द रिजीम। और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरीके से मतलब है पाकिस्तान से वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स भी ले रहे हैं। इसके अलावा आपको एक जो कॉर्डियल रिलेशन जो है वो बड़े मतलब है आपको बड़े वार्म नज़र आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और मैं समझता हूँ कि ये जो 18 से 21 तक तो जो भी ढाका में एग्जीबिशन हो रहा है इसमें भी बस आपका जो शहर है, आपके शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बताई है, जो कि आप कह रहे हैं कि फर्दर इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आपके शहर में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, SME भी बड़ी तादाद में है, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, रिफैक्ट्री, प्लास्टिक, बहुत सारा कारोबार जो है ना आपका, सैनिटरी वेयर, टेबल वेयर, बहुत सारी चीज़ें आपके शहर में हो रही हैं और इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड यू नेम इट।
اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ون آف دا ملک کا ایک انجینئرنگ ہب ہے، تو یہاں انجینئرنگ سے وابستہ بہت سارے کاروبار ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید ہونا چاہیے۔ ٹیکس بھی آپ نیشنل لیول پہ ٹیکس بھی آپ ماشاء اللہ 40 ارب روپے سالانہ دے رہے ہیں، پھر آپ کے ایکسپورٹ میں بھی آپ کی کنٹریبیوشن آپ نے بتایا کہ 2.5 بلین کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل از دیئر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے کیا پالیسیز آگے فیوچر میں دیتی ہے اور کیا لانگ ٹرم پالیسی دیتی ہے۔ ایکچولی سب سے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی آپ بات کریں، جی ویلکم کرتے ہیں جناب محمد سلیم صاحب کو بھی، جناب تشریف لائیں جی پلیز سر۔ تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام آباد میں جو ہے نا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے، یہ کراچی والے ہوں، لاہور والے ہوں، آپ نے بھی وہی بات کی، اور دیگر چیمبر بھی ہیں، ایک ہی رونا ہے۔ ایک تو وہ مشاورت نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کر دیا سو کر دیا، اور بعد میں بہت ساری کنٹروورسیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب پرانا پاکستان ہے، پاکستان کو اڑا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کسی سے پوچھا ہو کہ جناب آپ وے فارورڈ بتائیں، کیونکہ دیکھیں اکانومی کے ڈاکٹر ہم ہیں، ہم اپنی اکانومی کو جس طرح سمجھتے ہیں وہ اسلام آباد بیٹھے بیوروکریٹ جو ہے وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ بیوروکریٹ بیچارے بھی جو ہیں ان کی پرابلم بھی یہ ہے کہ وہ کبھی ایگریکلچر کے سیکٹری لگتے ہیں، کبھی سائنس اینڈ ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ انڈسٹری میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنا حج اینڈ عمرے والی سائڈ پہ ریلیجیس اپنا افیئرز میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے جو پورٹ فولیوز ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ جبکہ آپ اور ہم جو ہیں اسی لیے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، کیونکہ ہماری ایک ایک فیلڈ کے اندر یا بزنس کے اندر ہم جو ہے نا وہ ہمارے سالوں سال جنریشن سے ہم وہ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری نالج جو ہوتی ہے وہ زیادہ ریفائنڈ ہوتی ہے، زیادہ کلیئر ہوتی ہے، زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے۔ پرابلم از دس کہ اٹس اے بیوٹیفل کنٹری بیڈلی گورنڈ، جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنا خوبصورت اور اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں، لیکن کیونکہ حکمرانی صحیح نہیں ہوئی۔ اور میں ایک تھوڑے دن پہلے ایک کیمیکل انڈسٹری کے 10 سالہ تقریبات تھی، اس میں میں موجود تھا، مجھے ایز اے چیف گیسٹ لاسٹ پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے 2-3 منسٹر صاحب نے بھی اپنے اظہار خیال کر لیا تھا، تو وہاں بھی جب مجھے موقع ملا تو ایک تو ہمارے دوستوں کو یہ بڑا شوق ہے تعریف کرنے، بڑی تعریفیں کی سب نے۔ میں کہا اچھا چلو یار میری باری ہے کہ میں بھی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے بیڑا کر رکھی ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صرف ایک اسپیل ایسا ہے بیچ میں جس میں آپ نے نیشنل لیول پر آپ نے ترقی کی اور وہ انٹرنیشنلی ریکوگنائز ہوئی ہے، وہ تھی آپ کی 60 سال کے جو 5th پلان تھا جو آپ کا ایوب دور میں، جو جس میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب اس وقت ہمارے ٹریڈ کامرس کے منسٹر تھے، وہ ایک ترقی کا اسپیل تھا۔ اسی وقت ہم نے ڈیم شیم بنائے، اسی ادوار میں یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد جو آیا اس نے اس ملک کے ساتھ کوئی وفا نہیں کی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی، اور آج اس کی ثمرات اور آج اس کے مسئلے آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی 70s میں، اس کے بعد 10-15 سال تو کسی نے انڈسٹری کی طرف منہ نہیں کیا۔ تو یہ کوئی کسی چیمبر نے یا کسی فیڈریشن نے تو نہیں کیا، یہ سیاستدانوں نے کیا۔ اور وہ جو انڈسٹری نیشنلائز ہوئی ہے، آج بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو چل رہی ہیں جن کو نیشنلائز کیا گیا ہے، وہ 800 سے 1000 ارب روپے سالانہ نقصان کر رہی ہیں۔ وہ پیسہ جو ہم گورنمنٹ کو ٹیکس کی صورت میں دیتے ہیں اور وہ وہاں سبسیڈائز کرتے ہیں کہ سسٹم چلتا ہے، تو یہ کو پرائیویٹ سیکٹر نے تو نہیں کیا۔ پھر آگے ہم نے بے انتہا ہم لوگوں نے، ہماری گورنمنٹس نے، سیاستدانوں نے یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے شروع کر دی۔ اب فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی بھائی آپ کوئی اپنے حالات بھی دیکھ لو، اپنی اسکیل آف اکانومی بھی دیکھ لو، اپنے ملک کے معاملات بھی دیکھ لو۔ اب آپ نے جا کے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ، چائنا کے ساتھ آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ 1 کیا، پھر 2 کیا۔ اب دیکھیں ایسے ممالک جو جن کی اسکیل بہت بڑی ہے اور جہاں گورنمنٹ
और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बड़ी कंट्रोल्ड है। आप अपनी बिजली को देख लें, 16 सेंट से आप 12.5 सेंट पे आए हैं और फिर दोबारा बढ़ने के अंदिया दिया जा रहा है क्योंकि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। और फिर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेशन भी इस टाइप के कर दी है कि जिसमें आपकी जो है ना, पहले तो महंगाई बाहर से आ रही थी, अब महंगाई हम खुद क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस। ये IPP, सॉरी, फिर उसके बाद IPP आ गया। IPP ऑफर हमने तो नहीं की, हमारी गवर्नमेंटों ने की है। आज इतना आपने आप ले लेना इस चैम्बर को, अगर एक गाड़ी की जरूरत है, अगर आप 10 गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, भले ना भी इस्तेमाल होगा लेकिन फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ेगा। इसी तरह इन्होंने बिजली इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही, इन्होंने खड़ी कर दो जनाब, जो है ना IPP मॉडल इन्होंने खड़ा कर दिया है। और वो जो बिजली नहीं भी प्रोड्यूस कर रहे क्योंकि सिस्टम लगा हुआ है, अब उनको हमें पे करना पड़ रहा है। तो मतलब इस किस्म के जो हमने जो संगीन मसाइल खड़े किए हैं, जिसकी वजह से आज आपकी पूरी इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब है। आज भी आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अपने रीजन में, वो मार्कअप जो है वो 22 से 11 हो गया है जी, बड़ी ब्लेसिंग हो गई। लेकिन इस वक्त भी कोई नई इंडस्ट्री लगाने की तरफ रुजू नहीं करता क्योंकि पहली को सस्टेन करना ही बहुत मुश्किल हुआ है। फिर आपकी बिजली की कॉस्ट है, फिर इस घुटन की वजह से पाकिस्तान से पैसा जो है तकरीबन $12 बिलियन सिर्फ एक मुल्क UAE में जाके इन्वेस्ट हुआ है। और फिर हालिया बजट में हम सोच रहे थे कि शायद गवर्नमेंट कुछ मेहरबानी करेगी, कुछ हालात बेहतर करेंगे और शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कुछ मामला बेहतर होंगे ताकि लोग ट्रेड की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ आएँ। लेकिन इस बजट ने भी खासा मायूस किया है और इसमें ऐसे रूल्स जो हैं, ऐसी लॉज जो है इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी इंडस्ट्री के लिए वो अच्छे नहीं हैं। खौफ में तो इंडस्ट्री नहीं चलती। वो कल ही में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो कहते हैं जी अब तो इन्होंने कहा कि जनाब हमें शक किसी पर होगा तो हम उसको हमें पकड़ने का इख्तियार दें। ये 37AA यही कह रहा है कि हमें शक भी होगा। और ये डिपार्टमेंट की कौन सी कोई बड़ी अच्छी नेक नामी है, हम सब जानते हैं कि कितना इन्होंने, मेरा मतलब है अब इनको नंबर 1 पोजीशन पे रखें या पुलिस डिपार्टमेंट को नंबर 1 पे रखें, अब ये कंफ्यूजन है। लेकिन बहरहाल दिस इज दी रियलिटी कि मकसद है कि वो हमारे लाहौर शहर में एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। किसी कंपनी के रिफंड था, जायज़ रिफंड था 3 बिलियन का, और वो रिफंड के साथ फिर वो जो वो तय हुआ मामला कि जी 28 करोड़ रुपए, 28 करोड़ रुपए, ठीक है जी। तो वो 28 करोड़ की रकम थी, वो आपस में बड़े साहबों ने बांटनी थी, तो उसमें कोई इख्तलाफ हुआ, उन्होंने दफ्तर में ही बंदूकें डाल दी और वो अफसरान आज भी सस्पेंड है। बट दिस इज द रियलिटी। ये तो है टॉप पे, जो नीचे है वो तो अल्लाह ही अल्लाह करे। तो जब आप इस तरह के इतनी एक्स्ट्रा पावर्स दे देंगे एक ऐसे डिपार्टमेंट को जो आपकी सालों साल की आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत जो आपने कमाई है वो स्टेक पे होगी, तो इतनी घुटन में इंडस्ट्री या मईशत नहीं चल सकती। पकड़ना आपने एक बंदे को है, लेकिन जब आप फायर करते हैं एक कल्प्रिट को नीचे गिरा लेते हैं, लेकिन वो उस दरख्त पे जितने भी परिंदे बैठे होंगे वो सारे उड़ जाएंगे। तो बिजनेस कम्युनिटी तो फिर इस तरह खाइफ होती है कि जनाब ये क्या तमाशा हो रहा है। इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, वो समझते हैं कि एक्स्ट्रा पावर ग्रैब कर लेके हम शायद बेहतर जो टैक्सेस जो है वो ले सकेंगे। हम हालिया मेरी फैमिली में भी हमने भी बर्दाश्त किया है, और मेरे ख्याल में ये जनरल एक प्रॉब्लम है। केस आपका अदालतों में चल रहा होता है, स्टे भी मौजूद होता है, वो आपके बैंकों से पैसे निकलवा लेते हैं, होता है कि नहीं होता है। तो बात यह है कि जब कोई डिपार्टमेंट तो खुद किसी लॉ को, किसी सिस्टम को मानने को तैयार नहीं है, और आप पे वो कहते हैं कि नहीं जनाब हमें ये इख्तियार भी चाहिए, हमें ये भी इख्तियार चाहिए। तो फिर ये 2 लाख वाला जो मामला था, अब 2 लाख रुपया आपका इतना डिवैल्यू हो गया, 2 लाख की वक़्त क्या है भाई। जो सिस्टम में नहीं है आप उनकी तरफ जाएं, रिटेल चेन को इस्टेब्लिश करें, उनको रजिस्टर करें, बजाय वो उसको काम आप करते नहीं हैं, अपना होमवर्क तो करते नहीं। मैंने तो ऑनेस्टली सही, मैंने ये जो हालिया मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी कहा है, मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे थे और वहाँ चेयरमैन साहब भी बैठे थे,
लंगड़ियाल साहब, मैंने वहाँ भी कहा, मैंने कहा आपको आदत पड़ गई कितनी कराई सारी टेबल पे रख दे, क्या जी आपने हमें मुंशी बना दिया कि जनाब विदहोल्डिंग आप काटें और 7 तारीख को आप हमें जमा करवाएं। अब आप दोबारा यही करेंगे कि टैक्स आप कलेक्ट करें और हमें आगे जमा करवाएं। तो भाई हम अपने हिस्से का तो टैक्स दे सकते हैं, बाकी तो ये जो बाज़ारों में दुकानें खुली हुई हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है डिपार्टमेंट के साथ, तो ये मेरा और आपका और चैम्बर का काम तो नहीं है, ये तो आपका काम है। दूसरा ये इशू था, फिर ई-बिल्टी था। अब देखें अड्डों को तो चंद बड़े अड्डों को तो आप उसको रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारा ऐसी ट्रांसपोर्ट चल रही है जो वही ड्राइवर खुद ही है और खुद ही मालिक भी है, तो वो तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। अब जब आप कहेंगे जी ई-बिल्टी होनी चाहिए, तो वो तो ई-बिल्टी और इतनी डॉक्यूमेंटेशन और इतनी टेक्नोलॉजी से तो उसकी तो वाकफियत नहीं है। फिर आप कहते हैं जी ई-इनवॉइस हो, इंटरनेट सिस्टम हर वक्त बैठा रहता है आपका, आप कहते हैं ई-इनवॉइसिंग करें। तो बहरहाल ये चंद इशू थे। फिर आपका जो था फाइनल टैक्स रिजीम था एक्सपोर्टर्स का, वो एक बहुत बड़ा इशू था कि वो कहते हैं हमसे 2% भले टैक्स ले लें, हमारी जान छोड़ें, हमें ये ऑडिट शॉडिट और अपने धंधों में ना फंसे, हम अपना कारोबार करें। वो उनका बड़ा एक जायज़ा इशू था। फिर एक EFS वाला था। तो मकसद ये है कि ये चंद इश्यूज थे जो कि इस बजट में राइज हुए और सामने आए, और उस पर अनोमली कमेटी में भी बात हुई। और ये जो आप मतलब ऑनेस्टली से मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है कि लीडरशिप एट टाइम जो है हमारी खामोश क्यों हो जाती है। मैंने खुद एक अनोमली कमेटी थी जिसमें गुजरावाला चैम्बर के भी हजरात होंगे, जो 24 तारीख को अनोमली कमेटी जो हुई थी ना कि जी इस बजट में जो कुछ चीज़ें नीचे रद्द-बदल हुई हैं, अगर उस हवाले से कोई अनोमली है, उस हवाले से वो एक मीटिंग हो रही थी। तो उसमें आतिफ इकराम साहब हमारे प्रेसिडेंट जो है PCCI के, वो भी थे, कराची चैम्बर, सियालकोट चैम्बर और बाकी सारे चैम्बर भी शामिल थे, लाहौर चैम्बर भी उसमें शामिल था। तो मैंने कहा बजाय कि देखें इशू है, हम हर इशू को कंट्रोवर्शियल ना करें। मैंने खुद कहा कि आतिफ इकराम साहब हमारे PCCI के प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ द लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, अंडर हिज लीडरशिप ये 8 बंदे जो हैं दीगर चैम्बर जो हैं, जिसमें सियालकोट, गुजरावाला, कराची और दीगर शहरों के जो प्रेसिडेंट हैं, 7-8 को साथ लेके जाएं। अकेला सारे का सारा वजन फेडरेशन के प्रेसिडेंट पे नहीं आना चाहिए, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप भी लोड लो, मिल के जाएँ, जाके डायलॉग करें, बात करें, सब कुछ करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ तो वो कमिट कर लेते हैं, एन मौके पर स्लिप कर जाते हैं। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, 2 बजे वो स्लिप कर गए कि जी मैं तो नहीं बैठूंगा। तो ये चीज़ 2-3 दफ़ा हुई है। बहरहाल उन्होंने अपना हिसाब देना है, उन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना है। क्या उनकी मजबूरियाँ हैं वो बेहतर जानते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स, आई हैव द डिटेल्स, आई नो हाउ द थिंग्स वेंट ऑन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मैं नहीं चाहता था कि डिवीज़न हो, इसीलिए मैंने खुद कहा, बीइंग द लीडर ऑफ बिजनेसमैन पैनल, चेयरमैन ऑफ बिजनेस पैनल, मैंने खुद कहा कि आतिफ इकराम साहब हमें लीड करेंगे और बाकी दोस्त जो हैं उसको फॉलो करेंगे और उनके साथ रहेंगे, ताकि ये कंट्रोवर्सी जन्म ही ना ले। लेकिन कोई जिम्मेदारी ले तो फिर बात बनती है ना। तो गुजारिश ये है कि फिर हमने क्योंकि एक माहौल क्रिएट किया और बंदा पूरा शहर ही, कोई कहता था जी 2 लाख का बिल, कोई कहता था ई-इनवॉइस, कोई 37 से कि पकड़ धकड़ के कवानीन जो है क्या कर रही है चैम्बर, क्या कर रही है चैम्बर, क्या कर रही है चैम्बर, क्या कर रही है। नेचुरली देयर वाज द प्रेशर फ्रॉम अस ऑन अस फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी। तो हमने भी कहा जिसको देख रहे हैं कर रहे हैं। और बहुत सारी जब डायलॉग्स भी हुए तो देखा कि नहीं ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर हम नहीं रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट भी शायद हमारी बात ना माने। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं। हमारे कराची चैम्बर में भी आपने बलवानी साहब का देखा होगा कि जब वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके पीछे भी 100-150 बंदा खड़ा था। वो भी यही चाहते थे कि नहीं जी अब करना है। सो दैट वाज द प्रेशर फ्रॉम हम पर भी था लाहौर चैम्बर में
कि भाई बिल्कुल हमने हर सूरत ये सिलसिला करना है। और जो डायलॉग हो रहे थे वो के अपना हारून अख्तर साहब मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी से ही हैं, और हम लोगों ने उनका नाम भी दिया था कि ये चेयर करें और ये कमेटी को हेड करें, क्योंकि इन पर हमारा निस्बतन एतमाद बेहतर है बनिस्बत दूसरे वज़रा पे। तो वो उन्होंने मीटिंग भी बड़ी अच्छी कंडक्ट की, लेकिन बहरहाल उनकी भी कुछ लिमिटेशन थी। वो भी कहते थे हम ये इस प्रपोजल लेके आगे जाएंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएगा ये मैटर, फिर IMF के पास जाएगा। तो वो उनकी जो लिमिटेशन और जो बैरियर्स है वो अपनी जगह मजबूर थे। हम पे भी ये प्रेशर ये था कि नहीं जी आपने ये स्ट्राइक करनी है। यकीन माने लाहौर चैम्बर ने एक बैनर नहीं लगाया, हाँ वीडियो कॉल से हमने ज़रूर कहा दोस्तों को, हमने ज़रूर मैनेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची भी, लाहौर भी और हैदराबाद 3 सेंटर में बड़ी तगड़ी हड़ताल थी। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को एट टाइम्स घबराना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने देखा अगले दिन मुझे मार्केट से फीडबैक आई कि जी पुलिस बड़ी बैठी है। आप कहते हैं हमने 2-4 बंदों से पूछा कि यार जगह जगह पुलिस बैठी है, खैर तो है। तो पुलिस वालों से पूछा भाई आप क्यों? उन्होंने कहा जी कोई ज़बरदस्ती दुकानें ना बंद कराए। तो यहाँ तो एक दुकान ही खुली हुई, तो हमने ज़बरदस्ती वाला तो चक्कर ही ख़त्म हो गया। यहाँ तो लोग अपनी रजामंदी से, अपनी बका के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये हड़ताल की थी। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कोई इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि एक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी होना चाहिए कि हाँ भाई बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी है जो हालिया कवानीन से तंग है और उनको वो नहीं मान रहे, तो एक प्रेशर भी होना चाहिए। ये ना समझे कि नहीं जनाब हमने तो उनको लॉलीपॉप थमा दिया, हमने जो भी एक बात मान लेंगे, 2 बातें नहीं मानेंगे और गुजारा हो जाएगा। तो उनको पता है कि ये जेन्युइन इश्यूज हैं और ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से पूरे के पूरे शहर बंद हुए और बड़े शहर बंद हुए। मैं समझता हूँ कि मैं तो आज भी यही समझता हूँ। उसके बाद हड़ताल हमने की, अगले दिन हारून अख्तर साहब तशरीफ ले आए थे। आपने शायद तस्वीर मैंने आपको भिजवाई भी थी, आपने देखी भी होंगी। तो वो हमारे पास इसीलिए आए कि हमारे इश्यूज जायज़ थे और उनको भी यही कहा। कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड बंदा ज़्यादा खुल के बात कर लेता है, लेकिन उनसे भी यही कहा कि जनाब ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होंगे, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है कि सख्ती हो रही है, अगर आपका रेवेन्यू इस तरह बढ़ता है तो बेशक बढ़ा दें। मेरा प्रॉब्लम ये है कि पहले मुल्क में सनतकारी नहीं हो रही, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल रुका हुआ है, और अगर आप नाजायज़ सख्ती बरकरार रही तो यहाँ से पैसा जो है वो फर्दर फ्लाई कर जाएगा और बेरोज़गारी यहाँ मज़ीद बढ़ जाएगी। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम तो भाग नहीं सकते, तो पीछे बाद में भुगतना भी हम लोगों ने और आप लोगों ने भुगतना। तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट ना हो ताकि 25-30 लाख बंदा जो हर साल जॉब मार्केट में एंटर होता है कम से कम उसे रोज़गार मिले। रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही खड़ी होगी। कभी मुझे लूटेंगे, कभी आपको लूटेंगे, कभी तीसरे और कभी चौथे को लूटेंगे। तो मकसद ये है कि हमने इस मुल्क को में रोज़गार भी क्रिएट करना है और पोटेंशियल बढ़ा है। प्रॉब्लम ये है कि हमने सारे काम ही गलत किए हैं। ये IPP का जो मामला था, ये अगर हम कर लेते ना वाटर बेस्ड, इतना पानी आपके पास अवेलेबल। पीछे अपना प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मुलाकात भी हुई थी, तो मैंने उनसे एक लफ्ज़ कहा, सर वी हैव लॉट ऑफ वाटर बट वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। उन्होंने कहा ये कहीं अंग्रेजी बोली है, वी हैव लॉट ऑफ वाटर बट वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। मैं कहता सर वी हैव लॉट ऑफ वाटर फॉर 3 मंथ्स। वो आज के दिन जो है मानसून सीजन जो होता है तो बेतहा पानी है, डुबो रहा है इलाके, सैलाब भी आ रहे हैं, सारे मामला जो हो रहे हैं ये 3 महीने, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है, देन वी आर शॉर्ट ऑफ वाटर। और ये जितना पानी हम हाई सीज में बहा देते हैं, अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो ये तकरीबन $50 बिलियन की इकॉनमी है जिसको हम यूँ फेंकते। और ये मैंने उनसे कहा कि आप $1-1 बिलियन के लिए भागे फिरते हैं और ये इतना बड़ा सरमाया हम जो हाई सीज में फेंक देते हैं। आप अपनी ज़राअत ठीक करें, आपको बिजली बाई प्रोडक्ट मिलती है और क्लीन एनर्जी मिलती है, कोई एमिशन नहीं, कुछ नहीं। ये अल्लाह ने हमें तोहफा दिया हुआ है, अब हम उसको यूटिलाइज ना करें तो ये हमारी मैनेजमेंट है ना। तो बहरहाल
जो भी अरबाब इख्तियार हैं तो यही तवक्को करते हैं कि इन चीज़ों पर वो तवज्जो दें, मुल्क की इकॉनमी ठीक करें और ताकि यहाँ एक्सपोर्ट बढ़े, यहाँ जो बाहर से जो गुड्स आ रही हैं उसको हम अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकें, साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो, जॉब्स क्रिएशन हो, मईशत बेहतर हो। अल्टीमेटली तो हमारी यही ख्वाहिश है, सबकी यही ख्वाहिश है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ज़ोर ज़बरदस्ती और हमारी इज़्ज़त पर जो है वो हाथ डाला जाए, इज़्ज़त नफ्स पे हाथ डाला जाए। तो इसी के लिए थोड़ी बहुत जद्दोजहद की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि ये हम पर ड्यू है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि यस ये हम आप दूसरों से बेहतर, यकीन माने मैंने तो अपने जो अपोजिशन के दोस्त थे ना उनको भी फ़ोन किए, मैंने कहा यार इस मामले में डिवाइड नहीं होना चाहिए। हमारा भी लाहौर का बड़ा तगड़ा इलेक्शन हुआ था, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुरखरू किया, आप दुआ से हम भी सुरखरू हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको भी फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं यार दिस इज़ कॉमन कॉज, ये आपका भी मसला है मेरा भी मसला है, हम इसमें डिवीजन नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में पूरी हड़ताल की और आपने देखा भी है। तो बहरहाल जनाब ज़िंदगी तो नाम है जद्दोजहद का, जब तक सांसें हैं मसाइल भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी और जद्दोजहद भी जारी रहेगी। तो मैं अपने घर में आया हूँ और आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा है, अब दोस्तों से पुरानी कुर्बत भी और ताल्लुक़ भी और मोहब्बत भी है। तो इंशाल्लाह जी लेट्स मूव टुगेदर एंड फाइट फॉर द बेस्ट फॉर आवर इकॉनमी। थैंक यू जनाब। जी थैंक यू वेरी मच अंजुम नसार साहब, माशाल्लाह आपने इन डिटेल्स ब्रीफली तकरीबन हर एस्पेक्ट्स पे जो है वो बात करी। मैं ये समझता हूँ कि एक लफ्ज़ से जो है ना वो बड़ी तकलीफ होती है, 12-13 हज़ार अरब का इनको टारगेट भी दें और फिर हमको ये चोर भी बोलें। जो हर फंड में पैसा खाते हैं, अगर 1 अरब का नोटिस जारी होता है, आपके नॉलेज में होगा, उसकी कलेक्शन रेशो जो है वो 6 से 7% है। वो 93% जो है जो खा जाते हैं वो ही हमें सीटों पर बैठ के कहते हैं ये चोर है जो इस मुल्क की इकॉनमी को भी चला रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और ये 37 से और 37 बी जो है, ये सारी जो आर्टिकल्स अभी आए हैं, जो सेक्शन दी हैं, ये तो चोरों को डील करने के लिए है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे भी ऊपर जो है वो देखेंगे हमारे केसेस खुदा न खास्ता ये CCTV को न दे दें जिस रफ्तार से ये जो है वो चल रहे हैं। बहरहाल इसका जो है वो फियर फैक्टर ख़त्म करना होगा, ट्रस्ट लेवल बहाल करना होगा, टैक्स पेयर को इज्जत देनी होगी तो टैक्स बढ़ेगा। टैक्स को डराने से टैक्स कभी नहीं बढ़ेगा। डराएं उनको जो टैक्स रैकेट से बाहर है, कानून उनके लिए बनाएं जो टैक्स रैकेट से बाहर है। उनके लिए कोई कानून नहीं आता, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हमें ही निचोड़ी जाते हैं, हमें ही तोड़ी जाते हैं। बहरहाल ये तो बड़ा दुख वाली बात है। मैं अक्सर इस पर बोलता रहता हूँ, मेरी बात लंबी हो जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट साहब जो यूसुफ साहब अपने रिमार्क्स देंगे उसके बाद में सर। मोहतरम जनाब अंजुम नसार साहब, मैडम मुनसिफ खान साहबा, फ़हीम सहगल साहब और उनके साथ आए हुए लाहौर चैम्बर से तमाम मोहतरम मेहमानान गिरामी, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हालिया बजट में जो हमारे साथ टैक्स सिलसिले में या जो भी हमारे ऊपर तलवारें लटकाई गई हैं, हम अगर तमाम चैम्बर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपस में मिलकर इसकी स्ट्रगल करेंगे और एफर्ट्स करेंगे तो हमें इससे छुटकारा मिलेगा। अदरवाइज हमें अलग अलग करके ये इसी तरह ज़िबा करते रहेंगे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि लोग जो है ना टैक्स देने के बजाय इस मुल्क से भागेंगे। तो मैं दोबारा से आप सब मेहमानों का दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। कुछ कहने से पहले गुजारिश करूँगा कि जो
एग्जीबिशन के लिए हम लोग इस पे है, तो गुजरांवाला चैम्बर के लिए स्पेसिफिक कोई बंदा अपॉइंट कर दीजिएगा, कोऑर्डिनेटर, जो गुजरांवाला चैम्बर से और साथ से इस एग्जीबिशन के लिए बंदा एक हो, जिसको हर बंदा जो है ना, हम चैम्बर में एक बंदा एक डेस्क रख लेंगे और एक आपकी तरफ से एक बंदा कोऑर्डिनेटर हो जाए, तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा सेक्रेटरी जनरल सार CCA जुल्फ़िकार अली भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट एवरग्रीन शेख असलम साहब, मोहम्मद अली साहब, थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया गुजरात में आए, और थैंक यू टू अंजुम साहब, जिना मनसब चेयरपर्सन साठ रूरल चैम्बर, मोहम्मद अली सैयद साहब, नवीद बलोच साहब हमारे साथ हैं, जितने बाप यहाँ पे बैठे हैं, एंड थैंक यू। Today we are here to discuss about the South Asian Trade Fair 18 से 21 सितंबर को ढाका बांग्लादेश में होगा, और आप सारे जानते हैं, बल्कि कुछ लोग को आपने देखा भी होगा, बांग्लादेश इज अ बिग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी है, $60 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और पर कैपिटा इनकम उनकी अराउंड $3,000। पाकिस्तान की आज एज ऑफ टुडे पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड 13 to 1400। और स्पेशली रजीम चेंज के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी, दे आर वेरी वेलकमिंग टू पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, पाकिस्तानी पीपल। लास्ट मोर देन 17 years दे आर एक्सप्रेशन, और उनको इंडिया की तरफ, और अभी भी बांग्लादेश में इस वक्त 80% इंडियन मार्केट, ज़्यादातर एक्सपोर्ट इंडिया से की बांग्लादेश। लेकिन अभी 1 जनवरी में एक इवेंट हुआ था जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ने पार्टनर थे और एजुकेटर पाकिस्तान से भी किए थे, एंड दे पीपल टोल्ड अस कि वहाँ पे जो इंडियन स्टॉल्स थे वहाँ पे बांग्लादेशी लोग नहीं जाते, और पाकिस्तान के जो स्टॉल थे वो 2-3 रोज में खाली होते। दिस इज वेरी वेलकमिंग एटीट्यूड फ्रॉम द बांग्लादेशी पीपल। और जब हमने ये एजुकेशन अनाउंस की, पहले हम ये एजुकेशन मई में करने जा रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी डेवलप हुई कि हमने इसको पोस्टपोन करना था। अभी जब हमने ये दोबारा अनाउंस की तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप कर लिया, उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इसमें, और कुछ लेडीज़ की हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ट्रैक को अप्रोच भी किया। तो मेरी कल ट्रैक से बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे पास अराउंड 60 स्टॉल्स की रिक्वेस्ट आई। उन्होंने इसको हाईलाइट किया, अपने डेटाबेस में भी इसको सर्कुलेट किया, तो अपनी वेबसाइट पे भी डाला, और उनके पास ऑलरेडी 60 एप्लीकेशन आ चुकी। तो देवर आस्किंग भी कि आप क्योंकि साउथ एशिया ट्रेड फेयर कर रहे हो, उसमें बाकी कंट्रीज भी होंगे, तो बाकी कंट्री से कितने स्टॉल हैं, हमें मजीद स्टॉल मिल सकते हैं कि नहीं। अब जहाँ पे हम ये एग्जीबिशन करने जा रहे हैं, ये ढाका में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारा एक्सपो लाहौर एक्सपो सेंटर है, इसके 4 बड़े हाल हैं, तो हम एक हाल में कर रहे हैं जिसमें 107 स्टॉल हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉल बढ़ते हैं, हम दूसरे हाल तीसरे हाल में भी जाया जा सकते हैं, हम हाल बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि गुजरांवाला का एक मेजर रोल है पाकिस्तान एक्सपोर्ट में, यहाँ बहुत से ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जैसे अंजुम साहब ने कहा कि लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में वो काफ़ी ब्रांड्स से गुजरांवाला से, तो हम ये चाहते हैं कि आपकी चैम्बर के जो मेंबर्स हैं, आपके जो ब्रांड्स हैं, वो हमारे साथ हैं। बांग्लादेश की अगर आप देखें कि मेजर एक्सपोर्ट वो गारमेंट्स है, विच इज़ 70%, यानी अगर 60% इनकी $60 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें 40 बिलियन एक्सपोर्ट जो उनकी वो गारमेंट्स की है, बाकी लेदर प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी 1 बिलियन डिफरेंट इनकी प्रोडक्ट्स हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बांग्लादेश लैंड वाइज इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, लेकिन हाई डेंसली पॉपुलेटेड, उसकी वजह से अवर हेड कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरी एक प्रेजेंटेशन भी थी, अगर असलम साहब हैं इधर, मैं उसको अगर वो लेट करते तो मैं थोड़ा सा 2-4 पिक्चर्स भी आपको दिखा सकता हूँ।
गया हुआ है, किसी हाँ साइज बड़ा गया हुआ इस चीज़ को थोड़ा जूम आउट करते हैं ये फाइल इसको जूम आउट करते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे नेक्स्ट पेज कुछ चीज़ें तो बैलेंस से ब्रीफ करती हैं नेक्स्ट इससे नेक्स्ट वाला ये लेआउट प्लान पे ज़रा इसको थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ ये हाल का लेआउट प्लान था बांग्लादेश में सबसे बड़ा एज है जो गल्फ का है जो हमारे एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा है वहाँ पे $120 का है यहाँ पे डॉलर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है आज भी 286 287 वो सबसे बड़ा है और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन 90% इस वक्त तक पाकिस्तान से है पाकिस्तानी कंपनी से कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि बदलाव साहब भी एग्जीबिशन कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान के वो एग्जैक्टली 2 दिन के बाद हमारे इवेंट के 2 दिन बाद एग्जीबिशन हो रहे हैं ये साउथ एशिया ट्रेड इसमें अफगानिस्तान भी है इसमें इंडिया भी क्वेश्चन है जी आपकी टेडाप कर रहे हैं उसकी पार्टिसिपेशन फीस और है आपकी पार्टिसिपेशन फीस और है टेडाप ने एक्चुअली जो वेबसाइट पे डाली 275 डाली पार्टिसिपेशन फीस जो अच्छा वो टेडाप जो है ना वो सब्सिडाइज कर रहा है फिर आपके पास कौन आएगा कि वो सब्सिडाइज कर रहा है देखें जब आप अगर टेडाप ने तो एक डेडलाइन दी हुई थी ना जिन कंपनी को ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है अब वो सारी कंपनीज को नहीं करेंगे उनका एक क्राइटेरिया उसमें वो सिलेक्शन करेंगे यस्टरडे वो खातन पे भी फोन नहीं यस्टरडे दे टोल्ड मी कि हमारे पास 61 आई हैं लेकिन हमने इसमें से अपने क्राइटेरिया के मुताबिक एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट लास्ट में आपको होगा तो उसको पार्टिसिपेट कर चुके हुए यानी सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी हो गई मई में आपको मेरे ख्याल में अगर आप चैम्बर के प्लेटफॉर्म से टेडाप को अप्रोच करेंगे तो वो लाजमी अकाउंटेंट है नहीं हमने कर लिया हमारा हो गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कौन हमारे नहीं कुछ हमारे पास कंपनीज आई है डायरेक्ट आई है जिसमें खुलहमत है हमारी परफ्यूम्स है सफायर वाले कॉन्टैक्ट हैं वो डायरेक्टली आ रहे हैं वो टेडाप की तरफ नहीं जा रहे दे डोंट वांट टू सब्सिडाइज वो डायरेक्टली हमें और लाला टेक्सटाइल हैं ये सारे हमारे पास डायरेक्ट है जैसे पाकिस्तान के फ्रेंड्स तो इसलिए मैं चाह रहा था कि गुजरांवाला में तो बहुत असेंबली सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग असेंबली सेक्टर है गुजरांवाला से हमारे साथ अच्छे फ्रेंड्स चलने चाहिए बड़ी मार्केट है बड़ा स्कोप है 17 करोड़ आबादी है साहब भी 2 दिन बाद है वो भी ऐड हो जाएगा उनके 23 से ऑनवर्ड वो भी आपको ऐड हो जाएगा कि अगर आप दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो विद इन 1 टिकट दोनों इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं थैंक यू जी और एक क्वेश्चन था कि ये मैं अपने ऑफिस से मुमताज साहब से कोऑर्डिनेट हो रहा है वो कोई और आपसे मुमताज साहब से हो रहा है मुमताज साहब मैं मुमताज साहब ही वो कर देता हूँ पॉइंट वही कोऑर्डिनेट करेंगे ठीक है वो तो डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी जो है सॉफ्ट कॉपी ब्रोशर की हसन साहब से शेयर की थी वो सारे ग्रुप में जी बिल्कुल मेरे पास है क्योंकि आजकल सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा चलती है एज कम्पेयर टू हार्ड कॉपी तो मैंने प्रेफर किया था कि सॉफ्ट कॉपी जो ज़्यादा थैंक Thank you.
आप कोई दोस्त पे अपना को बात करना चाहते हैं? जी मुस्लिम जी थैंक यू अंजुम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातें मैं सुनता रहता हूँ। जब आप फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे, मैं गुजरावाला चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा था, जूम मीटिंग्स पे अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन से, मिनिस्टर से आपकी गुफ्तगू बड़ी इंस्पायरिंग होती थी, दो बात करते थे, सही मायनों में बिजनेस कम्युनिटी की तर्जुमानी करते थे। तो मैं वो हुक्मरानों के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो एक शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये जितनी भी रूलिंग एलीट है, अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिशियन हैं और जितने भी हो, तो ये सब कसूरवार हैं आज जो हमारे हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, नतायज अच्छे लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी पॉलिसी को भी रिव्यू करना पड़ेगा। आप पॉलिसी को तब्दील ना करें और कहें नतायज बेहतर हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में इंशाअल्लाह, और दुआ गो भी हैं, अपनी एफर्ट्स भी हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए खैर करे, हम सब के लिए खैर करे, आमीन। आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली तो आप लोगों की वोटिंग वेन होगी यहाँ पर, अगर उन्हें आप लोग सर्कुलेट करें। और अच्छा था अगर यहाँ पर आज आप लोग किसी को बुलाते, मेंबर्स तो आपकी ऑलरेडी होंगी, तो ख़वातीन बहुत जाना चाह रही हैं। और सिर्फ ये नहीं कि ड्रेसेस के हवाले से और भी ज्वेलरी डिज़ाइनर्स हैं या यहाँ पे और जो हैं, उन्हें भी आप अप्रोच कर सकते हैं। जी उन्हें भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि अगर आप लोग दोनों एग्जीबिशंस करेंगे तो एट ए टाइम बरलाज साहब का और हमारा कुछ डेट का, बट साहब आप बता रहे थे कि कुछ अच्छा वैल्यू भी सेम है और हाल भी सेम ही है, सेम भी वैल्यू में सेम ही है, दोनों अटेंड हो सकते। और म्यूजिकल इवेंट भी है, इसमें फैशन शो भी है। तो हम चाह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा इवेंट करें और टीडैप की सपोर्ट हमें मिली है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो जैसे अभी वो कह रहे थे कि टीडैप कितने में दे रहा है और आप लोग, तो ये इशू क्यों बना? एक्चुअली हमारी जो प्राइस है वो $1,000 है। टीडैप जो है वो 1 लाख रुपीस ले रहा है पार्टिसिपेशन फी फ्रॉम द एग्जीबिटर, रिमेनिंग 1,80,000 दे विल पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो वो हमें पैसे वो सब्सिडाइज कर रहे हैं जो उनके साथ रजिस्टर होने जाने के, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दे वांट टू रिलेशन विद बांग्लादेश, गवर्नमेंट की भी बहुत करें कि रिलेशन अच्छे हों, ट्रेड रिलेशन बढ़े, तो वो प्रमोट करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इसमें। सब बैठे हैं तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखें, हम पाकिस्तान में एक तो बड़ी हाईटेक प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, तो वो जो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो तो थोड़ी सी लिमिटेड होगी, क्योंकि भले उनसे कुछ ज़रा बेहतर होगी लेकिन बहरहाल फिर भी लिमिटेड है, और क्योंकि वो यूरोपियन ब्रांड्स को तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन बिटवीन हम फिट इन होते हैं। तो अक्सर मेरे दोस्त हैं, ये शबान साहब हैं, ये भी जिक्र करते हैं जब अफ्रीका जाते हैं डेलीगेशन लेकर, तो हमारी प्रोडक्ट बड़ी आसानी से फिट इन हो जाती है, क्योंकि एक तो बड़ी हाईटेक भी नहीं और नीचे भी नहीं, इन बिटवीन होते हैं। तो मेरे ख्याल इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इसमें कोशिश करनी चाहिए एज अ एग्जीबिटर जाएं, और कुछ दोस्त जो हैं वो मतलब जस्ट फॉर रिसर्च पर्पज भी जा सकते हैं कि इन फ्यूचर अपना कारोबार किस तरह बेहतर किया जा सकता है। और चैम्बर का डेलीगेशन भी अगर जाए आपकी तरफ से, तो मेरे ख्याल में एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी, और डेफिनेटली फिर आप
वो क्योंकि आपका इंटरेक्शन जो है ढाका चैम्बर के साथ भी, वहाँ की जो BCCI जो है बांग्लादेश फेडरेशन के साथ भी और सार्क के साथ भी, वो एक आपका कनेक्टिविटी ज़रा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बॉन्ड बेहतर हो जाएगा और आपको वहाँ की मईशत को समझने के लिए भी और वहाँ की जो है अपना इकॉनमी को समझने में भी आपको आसानी होगी। इस वक्त बांग्लादेश क्या है, एक तो गारमेंट्स में नंबर 1 है, आफ्टर चाइना दे आर नंबर 2 और उनकी जो जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 85% इज ऑल रिलेटेड टू गारमेंट्स। फिर उनकी जूट है, वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, टी है और फार्मास्यूटिकल, ये 4 सेक्टर हैं। बाकी सेक्टरों में वो वीक हैं। बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो जिनमें आप दोस्त काम कर रहे हैं और मुद्दतों से काम कर रहे हैं और आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, आई थिंक बांग्लादेश कैन बी अ गुड मार्केट फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसको थोड़ा सा ज़रा सीरियसली ज़रा स्टडी करें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बेहतरी हो सकती है और बहुत सारा कारोबार जो है वहाँ से कुछ चीज़ें शायद आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैंने बताया ना कि मेन उनकी 4 एरियाज़ हैं जहाँ वो स्ट्रॉन्ग हैं। गारमेंट्स, जूट, उनकी नेचुरल टी उनके यहाँ प्रोड्यूस होती है एंड देन इज वो अद्वियात वगैरह फार्मास्यूटिकल्स में उनका कोई थोड़ा बहुत एक रेपुटेशन और एक इंडस्ट्री मौजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बाकी बहुत सारे दीगर एरियाज जो हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करते हैं। अगर वो गैप को अगर आप पूरा कर लें और फिर अल्टीमेटली मेरे ख्याल में अगर कोई गवर्नमेंट को हम इस तरह भी पुश कर सकते हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेपरेटली विद बांग्लादेश कर लें, जिस तरह श्रीलंका के साथ की है। तो अगर टैरिफ की कुछ छूट हम दे दें, कुछ छूट हमें वो दे दें, तो फिर तो वो मैं समझता हूँ कि एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। अब चाइना के साथ जब आप करेंगे तो ना, तो फिर तो हम कुट रहे हैं। तो वो तो हमें नज़र आ रहा है कि वो हमने 70% टैरिफ जो है FTA विद चाइना कर दी है। तो वो तो सीरियस लोग हैं और बड़े सीरियस काम करते हैं, स्केल भी बड़ा है, ऑटोमेशन भी बड़ी है और फाइनेंशियल कॉस्ट भी ठीक है। उनके तो बिजली की प्राइस भी बहुत कम है। तो दे रियली मीन बिजनेस। चाइना इज वर्ल्ड फैक्ट्री है। तो मेरे ख्याल में एक रास्ता यहाँ अडॉप्ट किया जा सकता है सून और लेटर। तो मेरे ख्याल में इसको स्टडी ज़रूर करें, आप एग्जिबिट करें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको सीरियसली स्टडी ज़रूर करें। थैंक यू। जैसे अंजुम साहब ने इनवाइट किया है कि बेस्ट प्रेसिडेंट के आप एक डेलीगेशन लीड करें, एग्जीक्यूटिव तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन बिजनेसमैन एक डेलीगेशन लेते चले और हम आपकी मीटिंग डिफरेंट लेवल पे, पाकिस्तान का कमीशन भी इन्वॉल्व होगा आपकी मीटिंग, क्योंकि इस वक्त रियली काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है विद इंडिया एंड बांग्लादेश। उसकी वजह ये है कि शेख हसीना वालिद इज इन इंडिया और वो उसकी डिमांड कर रहे हैं, वो उसमें हैंड ओवर नहीं करते। पब्लिक सेंटिमेंट विदा डॉक्टर यूनुस एट होम वो इंडिया के खिलाफ जा रहा है। तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो गैप क्रिएटिव हुआ है वो हम उसको फुल करें। तो मेरे ख्याल में अगर आप कोई इन्वाइट यू कि आप एक डेलीगेशन लीड करें इसके वाला चैम्बर पेपर जी थैंक यू वेरी मच। मैं भी अंजुम साहब की से एग्री करूँगा। बहुत बड़ा पोटेंशियल है बांग्लादेश में। 718 मिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश को भी हो रही है। इसके अगेंस्ट इंपोर्ट जो सिर्फ है वो 42 मिलियन डॉलर है। तो ह्यूज पोटेंशियल है एक्सपोर्ट की ग्रोथ का। हम अपनी चीज़ों को बांग्लादेश में ले जा सकते हैं। डेवलप्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह की स्पेशली गुजरांवाला की जो इंडस्ट्री है, SMEs जो हैं हमारी, ये उनकी बाइंग पावर रेंज में भी होंगी और उनके ज़ाहिर बात है, मैं इत्तेफाक करता हूँ अंजुम साहब से कि वो हाई ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं करेंगे वो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो गुजरांवाला की प्रोडक्ट हैं, अगर हम वहाँ पे अपने एग्जीबिटर हमारे जाते हैं तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह भी हम गुजरांवाला चैम्बर से इंशाल्लाह एक डेलीगेशन जो है वो लाजमी इंशाल्लाह एक्सपो पे लेके जाएंगे, एग्जीबिटर भी लेके जाएंगे और हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है हम कोशिश करते हैं कि एक रिसर्च के हवाले से हम जो है वो अपना डेलीगेशन जो है वहाँ पे लेके जाएँ। और सबसे आखिर में मैं एक अंजुम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फोकल पर्सन अगर आप इसके रिगार्डिंग गुजरांवाला चैम्बर के लिए कर दिया और हम भी एक फोकल पर्सन आपको जो है वो दे देते हैं इंशाल्लाह इसको, और जो वो आगे लेके जाते हैं, एडवर्टीज़ भी करते हैं गुजरांवाला में इसको। और सबसे आखिर में जो है अभी ये हमारा शील्ड का एक प्रोसेस होता है सर,
تو اس کے بعد ہمارا جو فیسیلیٹیشن پر فلور بنا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو وزٹ بھی کراتے ہیں.